So at first, you should know meaning of two important terms. First one, gravitation, we are discussing. And second term is gravity. Now, what is gravitation? It is the force of attraction between any two objects in the universe. This is supposed to be object 1 and this is supposed to be object 2. Object 1 and object 2, any two objects in the universe attract each other by a force, and this force is called gravitation. Any two object, it may be the Earth and Sun, Earth and Pluto, Earth and Neptune. Okay. Now what is gravity then? The force of attraction between the Earth and any other object on or near it. The force of attraction between the Earth and any other object on or near it, this force is called gravity. Okay. So what is the difference between the terms gravitation and gravity? Gravitation is the force of attraction between any two objects in the universe, and gravity is the force of attraction between the Earth and any other object on or near it. So when I speak about gravity, one of the two objects is the Earth. And when I use the term gravitation, it is applicable to any two objects in the universe. So just draw these two diagrams. I hope you have understood the meaning of these two terms. Have you understood, all of you? Gravitation hota hai the force of attraction between any two objects in the universe. Is there any force of attraction between you and the Earth? Is there any force of attraction between you and Earth? Yes, there is force of attraction between you and Earth also, because you are on the surface of the Earth. Every object in this universe attract every other object. Okay. Is there any force of attraction between you and the mobile you are using, or the laptop or the PC you are using? Yes or no? Yes. Every object. लेकिन लैपटॉप उड़ के आपकी तरफ नहीं आ जाता, मोबाइल नहीं आ जाता. It is not okay. Attraction is there, but it is not coming towards you. The reason is that you both are attracted strongly by the earth. You both are attracted strongly by the earth. So I discuss meaning of two important terms, और अब मैं डायरेक्टली डिस्कस करूंगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वो समझाने के बाद विल डिस्कस एप्लीकेशन, सम न्यूमेरिकल्स. और आज का क्लास का मेन टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Now, what is Newton's universal law of gravitation? You just try to understand that particular law. पहले मैं बोर्ड में स्क्रीन पे समझा देता हूं. We know that every object in the universe attract every other object by a force. We know that. So this is supposed to be object 1 and this is supposed to be object 2. ठीक है?
So every object in this universe attracts every other object by a force, and we know that that force is called gravitational force. And according to Newton's universal law of gravitation, short में लिख रहा हूं मैं, according to Newton's universal law of gravitation, this force of attraction, this gravitational force, is directly proportional to the product of the masses of the two bodies. अगर पहला बॉडी का मास हम लोग मान लेते हैं m1, सेकेंड बॉडी का मास m2, so this gravitational force is directly proportional to the product of the masses of the two bodies. ये product of the masses कैसे आया? That force is actually directly proportional to the mass of first body. That force is directly proportional to the mass of the second body. That force is directly proportional to the mass of the first body. That force is directly proportional to the mass of the second body. ठीक है, दोनों बॉडी का मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस व्हाट? इफ यू इंक्रीज द मास ऑफ एनी वन ऑफ द बॉडीज, देन फोर्स विल आल्सो इंक्रीज. तो मैथ्स का एक रूल अप्लाई किया गया यहाँ पे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. ओके, A directly proportional to B and A directly proportional to C. So we can write A directly proportional to BC. So F directly proportional to M1 and F directly proportional to M2. Directly proportional का मतलब क्या समझोगे आप? If you increase any one of the quantities, other quantities also will increase proportionally. अगर एक को डबल करोगे तो दूसरा भी डबल होगा. Then they are said to be what? Directly proportional. So ये first statement से आप क्या समझते हो? That gravitational force is directly proportional to the product of the masses of the two bodies. That means what? If you increase the mass of any one of the bodies, force will also increase. Force will also increase. Okay. So, ये जो gravitational force है, this gravitational force is directly proportional to the mass of the first body. It is directly proportional to the mass of the second body. इसका मीनिंग ये समझ लो कि इफ यू इंक्रीज द मास ऑफ एनी वन ऑफ द बॉडीज, इफ यू इंक्रीज द मास ऑफ एनी वन ऑफ द बॉडीज, देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल इंक्रीज. ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडी का मासेस पे डिपेंड करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज. Depend on masses of both the bodies. Have you understood? Depend on the masses of both the bodies. Now, this gravitational force, let R be the distance. Yeah, D मान लेते हैं. D be the distance between the two bodies. That force, gravitational force, is inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. Square of the distance between the two bodies. इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? इफ यू इंक्रीज वन ऑफ द क्वांटिटी, अदर विल डिक्रीज प्रोपोर्शनली. एक को डबल करोगे तो दूसरा आधा हो जाएगा, एक को ट्रिपल करोगे तो दूसरा 1/3 हो जाएगा. लेकिन ये स्क्वायर का सिग्निफिकेंस भी है, दैट आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं. You know that F is directly proportional to 1/d square. F is directly proportional. Okay, we are discussing. F is directly proportional to d square. अगर मैं बोलूं आपको, if the distance is doubled, अगर मैं आपको बोलता हूं if the distance is double, तो नया फोर्स का क्या होगा? What will happen to the new force? F dash, suppose be the new force. Distance is double, so 1/2d whole square. तो 1/2d whole square होने से F dash will be proportional to 1/4d square. F dash is proportional to 1/4 of 1/d square. तो पहले था F proportional to 1/d square, अभी हो गया F dash is proportional to 1/4 into 1/d square. इसका मतलब force will be reduced to 1/4.
अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स 1/4 कम होगा, 1/4 बिकॉज ऑफ द स्क्वायर, ज्यादा कम होगा बिकॉज ऑफ द स्क्वायर. So by experiment, Newton found these two relations. कि the gravitational force between any two objects in the universe is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. Okay? अगर आप मास को ज्यादा करोगे, मासेस को ज्यादा करोगे तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा. तो व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ, F is directly proportional to m1 into m2. F is inversely proportional to the square of the distance. मैंने आपको एक चीज समझाया अभी कि we know that F is proportional to 1 by d square. और मैं आपको बोलता हूं if the distance is increased by 3 times, 2 times की जगह इस बार 3 times ले लेते हैं, तो फोर्स का क्या होगा, कौन बताएगा? व्हाट विल हैपन टू द फोर्स? पहले तो इंक्रीज और डिक्रीज में होगा, फोर्स विल डिक्रीज, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम. आपको ये बताना है कि वो 1/4 होगा, 1/6 होगा. Nabaruna and Chirag gave the correct answer. Sameer, Chirag, श्रेया, हिमांशु, कीर्ति घोरावत का आंसर रॉन्ग है. हीतल का भी रॉन्ग था. आई थिंक 1/3 इज रॉन्ग है. 1/3 इज रॉन्ग. करण का भी रॉन्ग है. 1/6. तो देखो मैंने अभी भी आपको समझाया, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, if the distance is increased by 3 times, then new force F dash is proportional to 1 by 3d whole square लिखना होगा. So F dash is proportional to 1 by 9d square आ गया. F dash is proportional to 1 by 9 into 1 by d square. 1 by 9 into 1 by d square, that means 1/9 हो जाएगा. That means 1/9. I hope you have understood this part. अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं अब, what happens to the gravitational force between two bodies if the distance is tripled, तो आपका आंसर होगा force will be reduced to 1/9. Force will become 1/9. We can also say like that. Okay. So अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वी आर डिस्कसिंग व्हाट? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Newton's universal law of gravitation. And what I stated according to the law, that gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance. Inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. Have you understood? Inversely proportional to the square of the distance. अब इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, दोनों को, F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर. और मैथ्स का रूल है कि आप जब प्रोपोर्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो, देयर इज नीड ऑफ ए कांस्टेंट. ये चीज मैंने आपको फिजिक्स में बहुत बार समझा दिया है. देयर इज नीड ऑफ ए कांस्टेंट, और न्यूटन यहाँ यूज किया था कांस्टेंट g. सो वी कैन राइट g m1 into m2 by d square. So F equals to g m1 into m2 by d square हो गया. Now what is g here? g क्या है, कौन बताएगा? What is capital G? What is capital G here? Anyone? Shreya D, your answer is wrong. Himanshu Ghorawat का आंसर भी wrong है. Parishmita, your answer is correct. जय का रॉन्ग है, हेतल का रॉन्ग है, समीर मुंद्रा करेक्ट है, नबरुना यू आर करेक्ट, कीर्ति यू आर करेक्ट, हिमांशु घोरावत रॉन्ग है, आदित्य तिवारी भी रॉन्ग है, जय बाजोरिया रॉन्ग है. ये कैपिटल जी एक कांस्टेंट है जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
ओके, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है 6.67 या 673 भी ले सकते हो आप, न्यूमेरिकल में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ये न्यूमेरिकल में कभी कभी 6.7 भी ले सकते हो आप, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो आपको यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो आपको दोनों बॉडीज का मासेस का जरूरत है और दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस का जरूरत है, साथ में आपको जी का वैल्यू ये जानना होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? अभी तक एक फॉर्मूला डिराइवेशन, आज का क्लास में यही कोशिश है आपका, ये जो ग्रेविटेशन का स्टार्टिंग पार्ट जो है वो आपका दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है, उसके बाद इजी होगा ये। सो टिल नाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूला F equals to G m1 m2 by d square, and we discussed the value of universal gravitational constant. The value of universal gravitational constant is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये वैल्यू जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कौन फाइंड आउट किया था? फॉर द फर्स्ट टाइम हेनरी कैवेंडिश यूजिंग ए सेंसिटिव बैलेंस। ओके, एक बैलेंस जो ज्यादा सेंसिटिव मतलब बहुत कम रीडिंग अगर दे सकता है, दैट इज सेंसिटिव बैलेंस। और मैंने 6.67 लिया था। यू कैन ऑल्सो राइट, अगर एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यू पूछे, यू कैन राइट 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, इसका मतलब पर केजी स्क्वायर। ओके, सो टिल नाउ वी डिस्कस द स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने स्टेटमेंट डिस्कस किया है। स्टेटमेंट किसका? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और मैं आपको ये मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि जी का जो यूनिट है, वैल्यू तो हम लोग को पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आ जाता है इसका? From that formula we are going to discuss. We know what gravitational force is equals to G m1 into m2 by d square. तो हमको G का यूनिट निकालना है, तो इसमें से कैन आई राइट F इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू m1 इंटू m2? सॉरी, कैन वी राइट F इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू G m1 इंटू m2? अगर मैं G को उसी तरफ रखूं, वी कैन राइट F इंटू डी स्क्वायर बाय m1 इंटू m2 इक्वल्स टू G, और वी कैन राइट G इक्वल्स टू F इंटू डी स्क्वायर बाय m1 इंटू m2. So we can write F into d square by m1 into m2. So F into d square, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, सो वी कैन राइट हियर मीटर स्क्वायर, मास का केजी, यहाँ किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, सो इट विल बी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय केजी इंटू केजी, सो वी कैन राइट nm स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, nm स्क्वायर kg to the power -2, nm square kg to the power -2. Have you understood this? सबको समझ में आ गया? Have you understood? Just respond in the chat box. Okay.
So the unit of universal gravitational constant is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और अब मैं आपको दिखाऊंगा और विल डिस्कस दैट डेफिनेशन. अगर आपको पूछा जाए डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अगर आपको ये बोला जाए डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, so you know that F equals to g m1 into m2 by d square. You also know that g is equals to F into d square by m1 into m2. मैं एक आपको कंडीशन देता हूं. इफ m1 is equals to m2 equals to 1 unit or 1 kg, and d distance is equals to 1 unit, that is 1 meter, then मान लेते हैं हम लोग दो बॉडी है जिनका मास 1 kg है, 1 kg, डिस्टेंस इज 1 मीटर. देन कैन आई राइट g इज इक्वल्स टू f into 1 square by 1 into 1. Therefore g is equals to f. Can I write this? अगर ये कंडीशन मान लेते हैं. Have you understood till now? तो इसी से हम डिफाइन करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट from this mathematical expression. So universal gravitational constant, universal gravitational constant is defined as the gravitational force between two bodies of unit masses separated by unit distance. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा कंडीशन में? अगर दोनों बॉडी का मास 1 यूनिट यानी 1 kg एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 यूनिट, दैट मींस 1 मीटर. सो आज का क्लास में अगर आपको दो स्टेटमेंट लर्न हो जाता और फॉर्मूला याद रहेगा, देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट. आपको एक चीज याद रखना है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, और सेकंड दिस डेफिनेशन. यू कैन नोट डाउन दिस डेफिनेशन. Universal gravitational constant is defined as the gravitational force between two bodies of unit masses if they are separated by unit distance. Separated by unit distance. Have you understood? सबको समझ में आ गया स्टेटमेंट डेफिनेशन? ये चैप्टर ऐसा है कि आपको क्लास करने के बाद घर में वापस पढ़ना पड़ता है चैप्टर में, अदरवाइज आफ्टर 3-4 days there will be again some confusion, and numericals are more important here. So I hope you've understood the statement. तो मैं एक दो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूं समझाना आप लोगों को. If you want, you can take the screenshot of this particular screen. Okay, just raise the hand to confirm. Now I'm moving to another part where I'm going to discuss about numericals. एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग. आप लोग भी इसको ट्राई करना, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को.
क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies of masses 5 kg and 2 kg respectively if they are separated by 10 मीटर। जी का वैल्यू आपको लेना है, जी का वैल्यू आपको लेना है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो आपको दो बॉडी का मास मैंने बता दिया है। मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी is 5 kg. Mass of the second body is 2 kg. Distance between the two bodies 10 मीटर और g का वैल्यू आपको बता दिया 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको ये डेटा यूज करना है एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू जी m1 into m2 by d square। F equals to g m1 into m2 by d square। फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो आप तो यूनिट न्यूटन होगा प्रियल बाजोरिया। अगर आप फोर्स कैलकुलेट करते हो तो यूनिट न्यूटन। समीर मुंद्रा ने भी आंसर दिया है, यूनिट नहीं लिखा। कीर्ति ने भी सॉल्व किया लेकिन 10 का पावर एक बार वापस चेक कर लेना। हेतल का आंसर नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्या 66 कैसे होगा। चिराग ने 10 का पावर एक बार चेक कर लेना। प्रियल बाजोरिया यू हैव गिवन द आंसर। बाकी सब लोग ट्राई करो, ये आज का क्लास का सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो मेजोरिटी का आंसर पावर में डिफरेंट आ रहा है, किसी का 10 टू द पावर -8, किसी का 10 टू द पावर -11, किसी का -12, किसी का -10। हिमांशु घोरावत ने 10 टू द पावर -12 और चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। आप लोग क्या गलती कर रहे हो यहां चेक कर लेना। जी का वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11। Mass of the first body 5 kg, mass of the second body 2 kg and 10 मीटर होल स्क्वायर। इन सब का चाहो तो आप लोग यूनिट लिख सकते हो, मैंने यूनिट लिखा नहीं तो डायरेक्टली मैं यहाँ न्यूटन लिख रहा हूँ। ठीक है, 10 स्क्वायर देना मत भूल जाना, 10 का स्क्वायर देना होगा। नाउ यहाँ पे हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 और यहाँ 10 इंटू 10, ओके न्यूटन। सो F इज इक्वल्स टू, थोड़ा आराम से करना होता है न्यूमेरिकल को, जल्दी नहीं होता है सब, आराम से आपको एक एक स्टेप करो, यू विल गेट टू द आंसर। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -10 हो गया इधर, और यहाँ पे 10 इंटू 10 था तो 10 स्क्वायर ही एक बार लिख लेते हैं हम लोग। तो F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको न्यूमरेटर में लेके 10 टू द पावर -2 न्यूटन। So it is F equals to
6.67 into 10 to the power minus 12 न्यूटन इज द आंसर। अब अपना अपना आंसर चेक कर लो कहाँ गड़बड़ किया है। 6.67 into 10 to the power minus 12, 6.67 into 10 to the power minus 12. Have you understood, all of you? सबको समझ में आ गया? ओके। 10 को कैंसिल, आदित्य तिवारी, 10 को कैंसिल, 10 का पावर अलग अलग होने से आप कैंसिल नहीं कर सकते। पावर अलग अलग होने से यू कैन नॉट कैंसिल। आदित्य तिवारी, हैव यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन जो मैंने दिखाया आपको? ओके, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ये पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बाद में आज न्यूमेरिकल घर में बहुत करना है। हाँ, स्प्लिट करने के बाद कैंसिल कर सकते हो आप, तब भी 10 टू द पावर माइनस 12 ही आएगा, आंसर वही भी आएगा। किसी भी मेथड से करो, 10 10 को कैंसिल करो, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर में 10 है उसको जब ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12। एक और पैटर्न में समझा रहा हूं यहाँ पे, जस्ट फोकस ऑन दैट। क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस टू द gravitational force between two bodies if the masses of both the bodies are doubled and the distance between the two bodies is reduced to half. What happens to the gravitational force between two bodies if the masses of both the bodies are doubled? दोनों बॉडी का मास को डबल किया और डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा? तो अगर हम लोग सॉल्यूशन देखते कैसा पैटर्न है वो आपको मैं समझा रहा हूं। हम लोग जानते हैं, वी नो व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू व्हाट, G m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेट एफ डैश बी द न्यू फोर्स। ये आपको लिखना होगा स्टेटमेंट में, लेट एफ डैश बी द न्यू फोर्स। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? masses of both the bodies are doubled, तो 2m1 and 2m2 and distance is reduced to half। देखना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, distance is reduced to half, so d by 2 whole square, d को आधा करना है मुझे, so d by 2 whole square। इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम लोग, so I can write what, f dash equals to 4 g m1 into m2
2 इंटू 2 4 कर दिया मैंने, और यहाँ d²/4 ब्रैकेट हटाने से। नाउ f डैश इज इक्वल्स टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 4 इंटू 4 इंटू जी m1 इंटू m2 बाई d² हो गया। f डैश इज इक्वल्स टू 16 इंटू जी m1 इंटू m2 बाई d² हो जाएगा। f डैश इक्वल्स टू 16 इंटू जी m1 इंटू m2 बाई d² हो जाएगा। f dash equals to 16f from equation 1। इक्वेशन 1 से हम लोग जी m1 इंटू एम टू बाई d² के जगह पे क्या लिख सकते हैं, f। so 6 f dash equals to 16f। so the gravitational force is increased by 16 times। the gravitational force is increased by 16 times। तो क्या किया हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ये इक्वेशन लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स F डैश इज इक्वल्स टू जी टू m1 क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में इट इज मेंशन masses of both the bodies are doubled, so 2m1 into 2m2, distance is reduced to half, so d by 2 whole square। फिर सिंप्लीफाई किया ये स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ओके, इसके बाद ये स्टेप। यहां मैंने क्या किया कि जी m1 इंटू m2 बाई d² को साथ में लिखा, एंड वी नो दैट, यहां से हम लोग को पता है जी m1 इंटू m2 बाई d² इक्वल्स टू f, तो इसको f से रिप्लेस कर दिया। सो f डैश इक्वल्स टू हमको मिला 16f, मतलब नया फोर्स पुराना फोर्स का 16 टाइम्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स। Gravitational force is increased by 16 times. Have you understood, all of you now? Have you understood it now? सबको समझ में आ रहा है? अर्ली मॉर्निंग का क्लास है, सो तो नहीं रहे हो कुछ स्टूडेंट क्लास ऑन करके? ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। When the equation was given g to m1, 2s कॉमन नहीं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, कॉमन नहीं लेना आपको। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, उस 4 को हम लोग यूज किए हैं, 4 इंटू 4 बाद में 16 हो गया, मल्टीप्लाई करना है और उसको फ्रंट में ले जाना आपको। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, क्योंकि आज अगर घर में आप लोग 6-7 न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो फिर आज का क्लास बेनिफिट नहीं होगा आपको। आपको ये सब न्यूमेरिकल अगर नहीं आता है तो फिर सेम सिचुएशन होगा आपका। सो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, यू शुड ट्राई दैट। करना आप लोगों को है वो सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, what happens to the gravitational force between two bodies if the masses of
both the bodies are tripled and the distance between the two bodies is reduced to half. इस बार मास को ट्रिपल किया है एंड डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ. आपको बताना है व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. और आप पेज नंबर 18 जो है, पेज नंबर 18 ग्रेविटेशनल का मटेरियल का, उसका न्यूमेरिकल आज आप कर लेना. स्टार्टिंग का फर्स्ट 10-12 न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक से रिलेटेड आज बैठ के अगर उसको कर लेते हो तो आपका ये पोर्शन एकदम क्लियर हो जाएगा. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. चिराग का आंसर रॉन्ग है. नबरुना यू आर करेक्ट. चिराग का आंसर रॉन्ग है. 8 AM पाथ 8 AM. जय बाजोरिया करेक्ट है. हिमांशु घोरावत करेक्ट है. ये वाला सम कर लो, दिमाग से ही हो जाएगा. करण शाह रॉन्ग है. चिराग शर्मा करेक्ट है. श्रेया डी यू आर करेक्ट. सुभी जैन आपका आंसर रॉन्ग है. समीर करेक्ट है. समीर मुंद्रा. हेतल सुराना यू आर रॉन्ग. कीर्ति घोरावत करेक्ट. आप यस पारिक यू आर करेक्ट. Hetal Surana, you are correct now. There are 25 students who are participating in this class. लेकिन आंसर सभी लोग नहीं दे रहे तो फायदा नहीं है. करण शाह रॉन्ग है. करण शाह. आंसर है फोर्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 36 टाइम्स. आंसर 36 टाइम्स है. जिनसे नहीं हुआ दिमाग यूज करते रहो. आंसर इज 36 टाइम्स. जस्ट नोट डाउन द आंसर और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है. आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन टू यू. ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर 36 टाइम्स. वन मोर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ मटेरियल का पेज नंबर 18 में कुछ क्वेश्चन है आज का टॉपिक से रिलेटेड. वो आप सभी न्यूमेरिकल आज टाइम अगर आपको मिलता है आज, नहीं तो कल तक सॉल्व कर लेना. ओके आज नहीं तो कल तक टॉपिक कंप्लीट कर लेना आप लोग. टुडे देयर विल बी नो क्विज. क्विज इवनिंग में ही होगा. बहुत स्टूडेंट अर्ली मॉर्निंग का क्लास दे आर नॉट एबल टू अटेंड बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज. सो क्विज इवनिंग में ही करेंगे हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और नेक्स्ट क्लास कल होगा आप लोगों का. नाउ क्वेश्चन. Calculate the gravitational force between two bodies of masses 20 kg and 50 kg respectively if they are
separated by a distance of, if they are separated by a distance of 10 centimeter, g का वैल्यू आप लेना 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. You just try to solve this particular question. Solve आप लोगों को खुद को करना है ये न्यूमेरिकल. मैं सिर्फ एक हिंट देता हूं आपको. When you read the question, also focus on units. आपको पता होगा जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करना होता है. अगर आप एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल करोगे तो आपको सबका यूनिट, सभी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एसआई में रखना है, और आप सीजीएस में करने से सबको सीजीएस रखना होगा. लेकिन क्लास 9 स्टूडेंट को मेरा एडवाइस है ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल एसआई यूनिट में करने का कोशिश करना आप लोग. So you should try this one if you get to the answer. समीर और चिराग ने आंसर दिया है, लेकिन दोनों का आंसर ही अलग अलग है. समीर और चिराग. नबरुना हैज गिवन अनदर आंसर. तीनों का आंसर अलग अलग है. प्रियल बाजोरी का आंसर भी अलग है. वाह, चमत्कार. जय बाजोरी का आंसर इनसे भी अलग है. मतलब 5 स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर एंड ऑल 5 आर गिविंग डिफरेंट आंसर्स. कहाँ गलती हो रहा है ढूंढो आप लोग. सेंटीमीटर को मीटर किया कि नहीं? M1 20 kg. हेतल का आंसर रॉन्ग है. M1 20 kg. M2 का वैल्यू 50 kg. डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर करने से 0.1 मीटर होगा. जी का वैल्यू आपको पता है. F इक्वल्स टू जी M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर. तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 20 इंटू 50 एंड इंटू 0.1 होल स्क्वायर. 0.1 होल स्क्वायर. So F equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1000 by 0.1 होगा 0.01. Therefore F equals to, इसको कंटिन्यू करते इधर, F equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1000 into 100. नीचे डेसिमल हटा दिया तो into 100. So it is 6.67 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 5 हो जाएगा इधर. So 6.67 into 10 to the power minus 6 Newton is the answer. और ये आंसर प्रियल बाजोरिया का करेक्ट था. हिमांशु घोरावत करेक्ट. हिमांशु घोरावत का करेक्ट था. प्रियल बाजोरिया का रॉन्ग था, सॉरी. हिमांशु घोरावत का करेक्ट था. नबरुना, यू आर करेक्ट. हाँ, समीर मुंद्रा डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं किया. आज जो मैंने न्यूमेरिकल कराया वो सब तो बच्चा वाला न्यूमेरिकल है. जो पेज नंबर 18 का न्यूमेरिकल जब आप करोगे ना तो आपको मैथमेटिक्स का कितना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसा आता है ना, वो सबका टेस्टिंग वहां पे होगा. एक मिस्टेक, स्क्वायर करना भूलना कॉमन मिस्टेक है, मेजोरिटी ये करता है, स्क्वायर करना भूल जाता है. दिस ऑलवेज हैपेंस.
तो मेरा आप सबको एडवाइस है, आज का क्लास बर्बाद मत जाने देना। मटेरियल से पेज नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूं कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। जस्ट लुक एट दैट क्वेश्चंस। ये न्यूमेरिकल्स आपको ग्रेविटेशन में पेज नंबर 18 में ये सब न्यूमेरिकल, द मास ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द फोर्स लाइक दैट, ये सभी न्यूमेरिकल आज ही कर लेना आप लोग। और वहां आंसर्स भी गिवन है, तो आपका आंसर गिवन आंसर से मैच होता है कि नहीं, जस्ट चेक दैट। अगर इतना हो गया तो ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, समझना आप। ठीक है, तो आज के लिए जस्ट मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव द क्लास। क्विज आज नहीं होगा। ग्रेविटेशन का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो क्विज के बारे में मैंने बोला था वो कल इवनिंग में होगा। You can mark the attendance and leave the class. ग्रेविटेशन का ये क्लास मैंने ऐसे ही कराया, पहले आप लोगों को स्टार्टिंग पार्ट प्रैक्टिस करना होगा, फिर हम एक और एक्स्ट्रा क्लास करवाएगा ऐसा। लेकिन अभी कंटिन्यू हम लोग का जो चैप्टर, रनिंग चैप्टर, वही चलेगा इवनिंग क्लास में।